लॉन्च हुआ है दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ एंड congratulations to Dipshika for opening up the institute. She has been working very hard all her life as an actress, and this is a new dimension which she is going towards. And I'll say all the best for her efforts, and the Diya should flourish. And the institute, as an actress, Dipshika has been a very persistent person when it comes to everything. So whatever she does, she sees to it that it is done very nicely and very profoundly, so that whatever she does, she has excelled. So I think this adventure will also excel. She will excel in this adventure, and well, it is nice that our colleagues are opening institutes so that the more people, those who are coming from outside of Bombay, they can come and they can really learn from actors themselves. And it's a great opportunity for everybody, those who are coming, those who are new. So it will be a first-hand experience with people, those who have really worked for so many years in this industry. So that is what I feel, that it will be beneficial for the people also. सर, हम केशव जी के बारे में बात करें तो वो भी दिया जी के Dipshika ke saath. Yeah, naturally. They are together. That's why I meant to say they are together. I am talking about the institute. Hanji. सेंटर Yeah, okay. you can speak now. So Keshav I have been seeing them for together. So when I meant to say Dipshika ji, I meant to say Dipshika and Keshav both. Because is also an actor. So they'll have to balance it together. Some portions he will be looking after, some portions she will be looking after. So that's how the progress will grow. It's like एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ लगानी पड़ती है. तो दोनों का हाथ जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा. Thank you. You're most welcome. Thank you, so kind of you. Sir. First of all, a big hi to Deepshika and Keshav, and many, many happy returns of the day. Keshav, happy birthday, dear. And मैं बहुत खुश हूँ कि दीपशिखा ने, जो कि मेरी बहुत अजीज़ फ्रेंड हैं पिछले कई सालों से, हम लोगों ने कई मूवीज़ एक साथ की हैं, कई टीवी सीरियल्स में भी एक साथ काम किया है, रीजनल फिल्म्स भी किए हैं हमने साथ में. और हमेशा से ही वो दीपशिखा एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही कर्मशील जिसको कहते हैं, हमेशा काम में तल्लीन रहना उसकी नेचर भी है. I can't call her workaholic, but she's quite close to it. She always wants to be on her toes and wants to do something or the other. और ये जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला है, I think this is it will not only enhance her status as an actress, but also it's a noble cause. I think today in India there are a lot of newcomers, a lot of youngsters who are coming from small cities, and they all want to act. They have a lot of openings these days, like they have web series, they have TV serials, they have movies, they have regional cinema, they have video albums. So a lot of people are here in Mumbai to get a break. So this way, if you're learning acting, or you're taking training in acting, or you're taking experience in acting from somebody as renowned as Deepshika, who has a vast experience in this field, I think it's a big boom to the youngsters who are strugglers today. And hats off to Deepshi for coming out with such a innovative idea of starting a acting school. Thank you very much. Bye bye. उधर दो उनको, उधर दो. एक्टिंग स्कूल है और आज बर्थडे भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना क्या है, दीपशिखा बचपन की दोस्त है और उसकी खुशी में शामिल होने का तो हक है. हम हक से आए हैं. हम यहाँ विज़िट करने नहीं आए हैं, हमारा ही इंस्टीट्यूट है. और दीपशिखा ने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अनकन्वेंशनल काम किए हैं जिनमें से ये एक है. हर चीज़ में वो सक्सेसफुल रही है.
तो हम सबकी दिली दुआ है कि दिया दीपशिखा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग भी उतना ही सुपर सक्सेसफुल हो जैसा उसके बाकी के वेंचर्स होते हैं। और केशव भी घर का ही है, उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे क्या हम सबका बर्थडे है, तो उसको ढेर सारी बधाइयाँ। दे हैव हैड रादर डिफ़िकल्ट लास्ट ईयर, लेकिन प्यार जिंदा रहा, दोनों साथ हैं आज और उनकी खुशी में हम लोग भी शामिल होने आए हैं। उसकी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में इंसिडेंटली मैं क्लासेस भी लेने वाला हूँ, तो आई नीड अ बिट ऑफ लक ऑल्सो, क्योंकि एक्टिंग सिखाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई किसी को सिखा नहीं सकता, सब खुद ही सीखते हैं। हमारा काम है उनको गाइड करना। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है हमें इंडस्ट्री में, तो हम चाहेंगे कि अच्छा टैलेंट आए। और एक ख़ास बात यह है इस इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे जिम्नेजियम से कास्टिंग नहीं होगी, तो 6 पैक हो या ना हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी एक्टिंग हो वो ही बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। वेट सर टू सेंटर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे तुम लोग सब लोग सेंटर में ही हो। ये तुमको Dipshi, Di, come here. Come. Look left. Pinto, you can't go without your wife. Hello, don't let him go. Listen. विनय जी क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे दीपिका जी का जो दिया जो इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? आप केशव जी का बर्थडे भी हो गया, बोलो जी। मेरी बहन की पार्टी, आप शुरुआत कीजिए। भाई इसके साथ मैंने बहुत काम किया है, दीप्शी के साथ हम लोग बहुत सीरियल्स में काम किया है, अलग अलग टाइम पे काम किया और बहुत ही खतरनाक एक्ट्रेस है। मुझे लगता है कि जब एक्टर लोगों को सिखाते हैं तो आई थिंक बहुत बेटर है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन को पता हो एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो एक्टिंग स्कूल आई थिंक जितने भी हो उतने कम है, क्योंकि बहुत लोगों का दिल है कि एक्टर बनना है। अब दीप्शी आई एम श्योर अगर स्कूल चलाने वाली है तो वो ये भी देखेगी कि लोगों को काम भी मिले। यही हमारी दुआ है कि आज बर्थडे के दिन पे लॉन्च किया, बहुत ही अच्छा दिन है। यस। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं छोटी सी एक लाइन कहना चाहूँगी कि अपने आप को जलाकर जो रोशनी देता है वो है दिया, एंड दीपशिखा उसकी लौ होती है। तो मेरी बहन ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन किया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। और आज मेरे जीजा जी का बर्थडे भी है, तो इट इज़ डबल सेलिब्रेशन। बैक अगेन माई सिस्टर एंड माई जीजू, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस माई सिस्टर्स अकेडमी। गॉड ब्लेस। परफेक्ट परफेक्ट। कौन पूछ रहा है? रोहित जी क्या कहना चाहेंगे? आप जैसा आपने केशव जी का बर्थडे भी है, या इंस्टीट्यूट लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। उन्होंने बहुत क्या कहते हैं इंडस्ट्री को दिया है, तो दिया लाइक दीपशिका इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, आई एम श्योर शी इज गोइंग टू डू वेरी वेल एंड वी आर वेरी प्राउड दैट बहुत सारे जो एक्टर्स हैं ऐसे निकल के आके ऐसे इंस्टीट्यूट को वो कर रहे हैं, जिसमें से अप कमिंग टैलेंट्स जो छोटे छोटे शहरों में जो इतना भरमार टैलेंट छुपा हुआ है, आई थिंक आशा करता हूँ उन सबको इंस्टीट्यूट में आके अच्छा मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बिकॉज आई थिंक सो इट्स अ वेरी ग्रेट कॉज
फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दीपशिका जो हैं जो ये काम कर रही हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो छोटे शहर के लोग हैं जिनको इतना एक्सपोजर नहीं है, तो आई थिंक तो इनकी फीस भी मैंने पता किया है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड शी इज़ नॉट चार्जिंग सो मच. So I think so it will be very great for great help to those young talents. रोहित जी, जहाँ तक बात है एक्टिंग इंस्टीट्यूट की, आपके अकॉर्डिंग कौन सा वो एक्टर है जो आपको जिसकी आप एक्टिंग का लोहा मानते हैं? वो तो पूरी दुनिया जानती है ना, अमिताभ बच्चन है. उनके अलावा जो अननोटिस रह गए, जो अननोटिस्ड हैं, आई थिंक अननोटिस्ड में तो बहुत सारे हैं. लाइक करण मेहरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और रवि दुबे. आई थिंक रवि दुबे इज़ एन फैबुलस एक्टर. सो आई थिंक सो मैं इन दोनों का नाम लूँगा. थैंक यू. So अब पता चलेगा how's the party. I'm sure it's going to be rocking. आप क्या कहना चाहेंगे दीपिका को जो आज जो दिया है इसमें लॉन्च हुआ है एंड बर्थडे पे उसी दिन, तो आप क्या कहना चाहेंगे? I think ये बहुत अच्छा मौका है and इस इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे एक्टर्स निकलने वाले हैं because Dipshi herself is a fantastic actress. डबल धमाका ये है कि हस्बैंड का बर्थडे भी है, so I think nothing better than that. So दो खुशखबरियाँ एक दिन पर. एक्टिंग के बारे में बात है, ऐसे कई इंस्टीट्यूट है जो रिनाउंड हुए एक्टर प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो ये इंस्टीट्यूट से आप कितना होप करते हैं जो नए जो जनरेशन आएंगे वो इतना हेल्पफुल होगा दीपिका के लिए? देखिए मेरे हिसाब से जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं शहर में टू एक्ट, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उतने कम हैं, लेकिन लेजिट इंस्टीट्यूट्स यानी कि उन लोगों से जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप इनसाइड स्टोरी जानते हैं, स्ट्रगल्स जानते हैं, सो आई थिंक पर्सपेक्टिव हमारा बेहतर होता है. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू एब्सोल्युटली बी वेरी सक्सेसफुल और लोगों की जेन्युइनली मदद होगी. जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, उनके लिए क्या एक सुविधा देनी चाहिए? आई सीरियसली थिंक कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को उनके लिए स्कॉलरशिप्स रखनी चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम्स रखने चाहिए, बिकॉज हाँ बहुत से लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. सो आई होप कि इनके इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई प्रोविजन हो जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे. वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो शुरू करानी चाहिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जो अब तक नहीं है? आई थिंक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में सबसे पहले तो हाउ टू टॉक टू मीडिया सिखाना चाहिए, बिकॉज बहुत से लोगों को मीडिया को हैंडल करना नहीं आता, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर. दूसरा जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो बहुत लोगों के पास नहीं होती है. सो आई थिंक वी नीड टू गेट देम ऑल रेडी टू फेस द मीडिया. एक्टिंग एक क्राफ्ट है. आई बिलीव कि या तो वो आप में होता है या नहीं होता, उसको आप सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं थ्रू टेक्निक, क्योंकि हर किसी को थिएटर का बैकग्राउंड नहीं मिलता. जिनको मिलता है वो बहुत लकी होते हैं, जिनको नहीं मिलता वो स्ट्रेट अवे टेलीविजन या फिल्म में आते हैं. अकॉर्डिंग टू यू कौन से वो एक्टर्स हैं जो अननोटिस रह गए हैं लेकिन वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं? देखिए बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अननोटिस्ड गए हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि कचरा भी अपनी जगह बदलता है. तो हर अच्छे एक्टर का दिन आता है. इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट. वक्त बदलता है और किस्मत भी बदलती है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. रवि, यू नो व्हाट, इंडस्ट्री में सबसे पहला दोस्त जो था इंडस्ट्री का हीरो Unfortunately for me. and they are there with me. I'm so blessed with lovely friends. Always, always, And always. Dipshika is the best, right? She is. Yes. और अभी आपके उसका अब्रीविएशन है DI, दिया. दिए जलाने वाले हो. एक्टिंग के. कोशिश कर. एक्टिंग के कीड़े होते हैं, एक्टिंग के दिए जलाएंगे. हाँ. जी.
नहीं, मैं इनको देख के ये सीखता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में भी इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी। No, nothing. ऐसा कोई टिप्स की क्या बात है? They were just friends. He's a fantastic dancer. Everybody knows he's a fantastic actor. देखिए, ना मैंने डांस के क्लासेस किए हैं, ना मैंने एक्टिंग की है। शायद ये पहले आती तो मैं कर लेता, but now जो है वैसे ही चल रहा है। मैं बोलते हैं कलाकार और बेवकूफ पैदा होते बनाए नहीं जाते, वाह वाह, उन्हें वाह, सिर्फ वाह, नर्चर वाह, किया वाह, जाता वाह। है। ये बात सुन के मेरी लेफ्ट आंख में आंसू आ गए यार, बहुत इमोशनल था। ये मेरे सामने कुछ नहीं बोले। देखिए, नहीं, डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि देयर शुड बी मोर ट्रेनिंग स्कूल्स, जैसे हर एक प्रोफेशन के ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं। एक्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो आप थोड़ा ओपन अप हो जाते हैं, गॉड गिफ्ट अलग बात होती है, लेकिन उसको भी पॉलिश करने के लिए कोई ना कोई स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक व्हाट एक्टिंग डज इज़ यू नो दी स्कूल्स, दे एक तो आपके इनहिबिशंस निकाल देती है, दूसरे टेक्निकली आपको बहुत नॉलेज आ जाती है कि कैमरा कैसे होता है, लाइट्स क्या होती है, स्क्रीन पे एक्टिंग क्या होती है, स्टेज पे होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर अच्छे टीचर्स हों तो डेफिनेटली आपका काम बहुत जल्द हो सकता है। जो चीज़ आपको 10 साल लग सकते हैं करने में, शायद 2 या 3 साल। एंड बाकी मैं मानता हूँ कि टू बी अ गुड एक्टर एक होता है, ऊपर से होता है। इस बात पे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, अगर मैं एक्टिंग की परिभाषा जानना चाहूँगा जी, तो एक लाइन में क्या रहेगी? एक्टिंग इज वर्किंग सो हार्ड दैट यू डोंट एक्ट एनीमोर। जितने आप नेचुरल लगे, जितने एफर्टलेस लगे, आई फील दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग। तो यू हैव टू लर्न हाउ नॉट टू एक्ट एंड हाउ यू वुड बी व्हेन यू आर इन अ कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू मी। लास्ट क्वेश्चन, आप खुद को कितना रेट करेंगे? 1 to 10 में कौन सा नंबर देंगे एज एन एक्टर? अब जैसे मैंने बोला, आई डोंट कंसिडर कि एक्टर ऐसा, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और रेटिंग तो मैं थोड़ी दे सकता हूँ। नहीं, जाऊँ अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। वो करके दिखाती है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, शी हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रिट, एंड द वे शी वर्क्स अराउंड थिंग्स, यू नो, जो भी प्रोजेक्ट करती है बड़े दिल से करती है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. The first thing that I think her students would learn is that determination, that live it up to, you know, everything, like with a smile, go through all your struggles, and that's what they will learn and come out to be winners. याद आ रहा है कि मैंने उसकी फिल्म देखी थी, मेरा एक मोमेंट जो था, एंड आई रिमेंबर कॉलिंग हर अप एंड टेलिंग हर दैट शी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. शी सेड मेरी एक्टिंग कैसी लगी? आई सेड द बेस्ट पार्ट वाज एक्टिंग नहीं लगी, यू नो, सो दैट वाज माय कॉम्प्लीमेंट टू हर, एंड डेफिनेटली आई थिंक शी इज वेरी नेचुरल. और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से कह रहा था कि वो एक्टिंग के कीड़े होते हैं, इसका वो है DIA, तो ये एक्टिंग के दिए जलाने वाली है सब. देखिए, unnoticed is a very broad term. I don't think it's, you know, you can say that. There are fantastic people who act fantastically. मेरे favorites जिनका ज़्यादा नाम लेना चाहिए, of course दिलीप कुमार साहब थे, लेकिन मोतीलाल जी, you know, बलराज साहनी जी, मेरे हिसाब से they were the most natural actors, और ज़्यादा उनकी बातें करनी चाहिए. वो कहीं लोग इतना बातें नहीं करते. That's what I think. वैसे आप जानना चाहेंगे कि आप जनरल की जो फिल्में देखते हैं, कितने बड़े क्रिटिक हैं, कितना मुंह पे बोल देते हैं, या फिर इन क्रिटिक्स को बुराई कौन चीज़ को दिल में रखते हैं, आप कभी शेयर नहीं करते? नहीं, मैं ऐसा हूँ कि मैं पूरा ऑनेस्टली से बता देता हूँ. He's the biggest critic. बिगेस्ट क्रिटिक. And और he's still smiling. You've allowed him to smile. मैं बता देता हूँ कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा और ये मुझे अच्छा लगा. तो बहुत खामियाजा. देवदास बन चुके हैं. देवदास. उन एक्टर्स का बहुत पसंद आता है. आई थिंक आई बीन एन आर्डेंट फैन बचपन से लेकर आज तक श्रीदेवी जी, बिकॉज आई थिंक मेरा जॉनर भी कॉमेडी है,
उन्होंने भी अपने पूरे करियर में ज़्यादातर बहुत अच्छी तरह से एंड कॉमेडी नॉट इन द स्टाइल ऑफ कैरिकेचर, कॉमेडी मतलब जहाँ सीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और खूबसूरती से, क्योंकि कॉमेडियंस हमेशा ऐसे देखा जाता है कि कॉमेडियन सिर्फ कॉमेडी करने के लिए होते हैं, एक दो सीन किए फिल्म में निकल गए, बट शी इज़ ऑलवेज डन अ गुड जॉब and she's the mainstream heroine all the time and done a lot of good comedy. So I've been an ardent fan of Sridevi ji. रवि सर, क्योंकि बात हो रही है इंस्टीट्यूट की और एक टाइम पे चाहे वो बूढ़ी बूढ़ी हो या फिर लड़कियों का गाना आया, आप लोग आपसे एक डांस सीखते थे, तो इंस्टीट्यूट आपकी तरफ से आप लोग 2 घंटा रुकिए, फिर धीरे धीरे उठा के लाएंगे लोगों को अंदर से। बहुत माइंड ब्लोइंग पार्टी होने वाली है। फिर जब पार्टी पे 1 बजे के बाद आप रुकें तो फिर उठाना पड़ता है लोगों को। हाँ जी, हाँ जी सर, हम पूछना और आपको तो वही न्यूज़ चाहिए। आपको शादी की न्यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं, जब डिवोर्स हो जाए तब मज़ा आता है। तो मीडिया को अलग ही मज़ा है, तो मज़ा बहुत आने वाला है अभी थोड़ी देर में। जानना चाहेगा कि चूंकि आज इंस्टीट्यूट भी खुला है एक्टिंग का, जी जी, और कितनी ज़रूरत पड़ती है आज के नौजवानों को एक्टिंग इंस्टीट्यूट की, क्या वो एक्टिंग सीख के नहीं आती? आई थिंक एक्टिंग सवाल देखो क्या बोलते नहीं बिल्कुल सही, करेक्ट पूछ रहे हैं। लेकिन सी आई थिंक एक्ट करना, परफॉर्म करना एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है। ये बहुत लोग कहते हैं कि इनबॉर्न क्वालिटी है, बट एट द सेम टाइम जितने एक्टर्स हैं, हम लोग भी जैसे कॉमेडी करते हैं या फिर डांस करता हूँ या 10 चीज़ें करता हूँ, शोज़ करता हूँ, होस्ट करता हूँ, लेकिन आपको एक क्लासेस की ज़रूरत इसलिए होती है कि आप वहाँ पर थोड़ा एक रिफाइंड हो जाते हो, थोड़ा एक हल्की पॉलिशिंग हो जाती है ना। बोलते हैं ना, जूता अभी नया नया आया है लेकिन थोड़ा धूल वूल रहती है उसके ऊपर, थोड़ा हल्का कपड़ा ब्रश मारो तो थोड़ा चमकता है। तो आई थिंक एक्टिंग इंस्टीट्यूट, और चलते भी इसी वजह से हैं, और दीपशिका ने ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो अच्छी बात है। उसका एक्सपीरियंस है, उसने बहुत साल काम किया है, फिल्में की हैं, टेलीविज़न किया है, तो उसको पता है कि क्या एक नया बंदा जब आता है तो उसको क्या क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या पॉलिश करेगा, क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे। अब मुझे पता नहीं बेसिकली कि इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें करवा रहे हैं, बट अगर कोई बंदा जो काम कर चुका है इतने सालों से, वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलता है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, और लोगों को बढ़िया सिखाएंगे वो। हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी अदाकारा हैं, और पहली फिल्म कश्मीर ये कैसे नहीं होगा, तब से लेके अब तक कितना बदलाव आया एज एन एक्टर कृष्णा? आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट दीपशिका, क्योंकि दीपशिका का ये इवेंट है और शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब कि वो अभी वो एक तो फैंटास्टिक एक्टर है और उसने ये इंस्टीट्यूट खोला है। शी इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, बट लाइक माय फ्रेंड सेड हियर, आर्टिस्ट एंड इडियट्स आर बोर्न नॉट मेड। मैंने नहीं बोला, चार्ली चैपलिन ऐसा बोलता है। But she's going to help people learn reform. Like you said कि कोई सीख के कुछ भी सीख के नहीं आता, बट यहाँ पे पॉलिश करने वाले बहुत सारे मिलते हैं, एंड आई थिंक दीपशिका विल रियली डू अ गुड जॉब। शी इज ब्रिलियंट। आपने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो, आपको कुछ याद आता हो, या आपने शेयर करना चाहिए? मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं ज्वाइन किया, मेरी एक्टिंग तो सिर्फ थिएटर ही रही है, और मकरंद देशपांडे के थिएटर ग्रुप में सो आई थिंक दैट इज एन इंस्टीट्यूट इन इटसेल्फ, ही इज़ एन इंस्टीट्यूट इन इटसेल्फ। और हमेशा आप किसी ना किसी से तो सीखते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक को स्टार से ही सीखो, यू लर्न इवन फ्रॉम द स्पॉट बॉय कि क्या नहीं करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या होता है, सो यू कीप लर्निंग एवरी डे, और जो सीखता है रोज़ वही आगे बढ़ता है। देश वन मोर क्वेश्चन के गोविंदा जी से कौन सी वो एक क्वालिटी जो आप अब तक नहीं ले पाए हैं उनसे, और बेहद इच्छुक है इस बात की कि वो चीज़ में वो फैक्टर ले पाऊँ उनसे, वो बड़े ले पाऊँ? आई थिंक वर्सेटाइल हैं वो बहुत, हर चीज़ में, और अभी तक जहाँ तक कॉमेडी का सवाल है, हमारे शोज़ चले हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। अभी नहीं, कॉमेडी सर्कस से लेकर कॉमेडी नाइट्स से लेकर जितने भी शोज़ किए हमने सक्सेसफुल हुए। मैंने और कश्मीरा ने बहुत सारे डांस शोज़ किए, वो भी अच्छे सक्सेस रहे हैं टेलीविज़न पे। फिल्में भी मैंने की, रोहित शेट्टी के साथ बोल बच्चन की, एंटरटेनमेंट की, क्या कूल है हम की। लेकिन आई थिंक वर्सेटैलिटी जो हर चीज़ में परफेक्ट, आई थिंक मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरे मामा हैं और पब्लिक भी यही कहती है कि वो अगर एक्शन करें, रोमांस करें, डांस करें, चाहे कुछ भी करें, वो हर चीज़ में परफेक्ट हैं। और हर चीज़ में परफेक्शन पाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। आदमी सीखता रहता है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लर्निंग प्रोसेस है। हम जब भी कोई नए एक्टर के साथ काम करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो एवरी टाइम यू लर्निंग। और हम लोग क्या है, हम लोग तो चलो अभी बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अमित जी से भी पूछे तो वो भी यही कहते हैं कि आई एम लर्निंग, यू नो, कि मैं अभी भी नए लोगों के साथ काम करके सीखता हूँ।
think तो we're ये very, एक्टर very- का काम ऐसा ही है कि वो एंड तक, चाहे वो 90 साल का हो जाए तब भी फिल्में करता रहे, तब भी बोलेगा कि यार मैं अभी कुछ नया, मैंने इस जनरेशन के साथ कुछ नया सीखा। तो आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और दीपशिका का भी जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक शुरुआत है लर्निंग प्रोसेस की। बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप व्हेन यू कम अक्रॉस अ वेरी सीनियर पर्सन और जिसने इतना सारा काम किया है, उससे अगर मैं ये नहीं कहता कि 90% आप सीख जाओगे, लेकिन अगर 40% भी सीख जाओ तो वो भी बहुत बड़ी बात वो है। भी उनके लिए 100% होगा। और जहाँ आपने वो सवाल पूछा उसका जवाब मैं देता हूँ कि तब से, और बहुत अच्छा लगा मुझे, आप पता नहीं कब से जानते हो मुझे, कि उससे यहाँ से लेकर अभी तक क्या फ़र्क है। हाँ बिल्कुल। तो तब से अभी तक ये असर रहा है कि तब से 2007 तक मैं सिर्फ काम ही कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन जब 2007 में मैं कश्मीरा को मिला तो उसने मुझे बताया कि तुम अगर टैलेंटेड हो तो तुम इतना सा काम कर रहे हो एक फील्ड में, तुम्हें इतना करना चाहिए। तो शी इज़ द वन हु गॉट मी देयर ऑन टेलीविज़न। मैंने नजबलिए किया, बड़े शोज़ किए, और आज मैंने वन ऑफ द बेस्ट शोज़ किए हैं टेलीविज़न। तो आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ हर। Shocked me. दूसरा मिला अंदर तो प्रॉब्लम। Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच। अभी दीपशिका के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ कि दीपशिका ने एक नया स्टेप लिया है। इतनी एक्सपीरियंस वो खुद है, तो जो अपना एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस है जो उसने अपने एक्टिंग में डाला है, अब वो लोगों के साथ शेयर करेगी, स्टूडेंट्स को सिखाएगी। तो आई एम श्योर उनको नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यू नो टिपिकल एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हम लोग देखते हैं जब बॉम्बे में आते हैं, मुंबई में आते हैं, जो कि एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, तो उनको लगता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट हो, कौन सा ज्वाइन करे, कुछ एक आध नाम वाले हैं। तो आई थिंक ये जो इंस्टीट्यूट है वो कुछ नयापन लेके आएगी, एंड आई एम श्योर अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ अच्छा सीखने वाली है। मैं ऑलरेडी बहुत देख रही हूँ क्रैश कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, ये वो एक आध तो मुझे लगता है कि मुझे भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि दीप्शी को खुद इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। इस चीज़ को लेके हम दोनों बहुत ही पारदर्शी हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। हम लोग एक दूसरे की कितनी तारीफ़ करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग एक दूसरे की कमियां बताते हैं एक दूसरे को, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर और कोई आपकी कमी नहीं बताएगा। जो आपका खुद बहुत ख़ास है, अपना है, वही आपको कमी बताएगा, और अगर वो आपकी झूठी तारीफ़ करने लग जाए तो बहुत गलत है। तो मुझे लगता है हम दोनों ही एक दूसरे की जो कमियाँ हैं वो बताते हैं, उसको सुधारते हैं। और संभावना के अंदर मैंने जो एक्टिंग देखी अभी फ़िलहाल, उन्होंने कुछ सीरियल्स में काम किया, इसमें एक रज़िया सुल्तान है, तो मैं खुद बहुत शॉक्ड रह गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। आई थिंक अच्छा इंसान, अगर आप अच्छे इंसान हो ना तो दुनिया की सारी चीज़ें आप ओवरकम कर जाते हो। आपकी कोई बाकी की कमियां भी है ना, तो वो भी आप उसको धीरे धीरे ठीक कर सकते हो। लेकिन आप अगर अच्छे इंसान ही नहीं हो तो फिर बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छे एक्टर हो, बहुत अमीर हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत शान शौकत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछेंगे तो अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। मैं बुरी आदतें तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक तो नहीं उनकी एक, ये आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि डिप्लोमेटिक हो ही नहीं सकते। डिप्लोमेटिक हम दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। संभावना की ये आदत मैं कहूँगा कि बुरी नहीं है, लेकिन ये जिनका जो बेबाकपन है, किसी भी चीज़ को किसी के मुंह पर कह देना, वो कई जगह 90% बहुत अच्छा काम करता है, 10% कहीं नहीं करता है। वो भी शायद इस वजह से कि लोग उसको नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस कमी को चेंज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है ये फेस पे कह देने वाली चीज़ जो बहुत अच्छी है, और हाँ कहीं ना कहीं इसको कमी भी कह सकते हैं अगर कहा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
है।